आप सबों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। मेरा नाम है स्टीफन फिश, यूबिन वेलफेयर सोसाइटी का कल्चर सेक्रेटरी हूँ और आज हम यहाँ इस जगह में मौजूद है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को धन्यवाद देने के लिए और अपील करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स लेके यहाँ आया हूँ। इसलिए आप से एक के बाद एक अपील करने के लिए यहाँ हमारे यहाँ मेंबर्स लोग आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अवियांग वाजा, the General Secretary of Yubin Tribes Fundamental Rights Forum. And this time I'm also standing here together with so many people to appeal to government of Arunachal Pradesh as well as to all the civil society, student body, intellectuals of our state. And I want to appreciate the government of Arunachal Pradesh for bringing out an extraordinary gazette on 2nd June of 2019 where there was an amendment of Panchayati Raj nomination when it comes to the form number 4 amendment, where the nominee needs to declare that she or he is a indigenous local resident of the address given above. But unfortunately, this rule was not adhered to in Vijayanagar. So to correct this anomaly, the Vijayanagar youth's student body, the society leaders have been trying to bring it to the government's notice for the past 3 years. So all total, there were like 5 rallies organized, Arunachal Bachao Andolan, numerous representations, and a record high like hunger strike. So all these things were done. But seeing no progress to the demand, on the 5th rally was organized December 2020 at Vijayanagar. Unfortunately, that rally turned violent. Some offices were destroyed. And these events were regretted and condemned by one and all. And of course, because of much frustration, has driven people to such extreme, which is not at all endorsed by anyone, and our society has been paying price for that. So very soon arrests were made. The case was given to Itanagar Crime Branch Police and special investigation teams were constituted. And also the case was given to the Sessions Court, UPA. Well, and many arrests were made. And initially much speculations were voiced, why and what. And however, the Itanagar police did a good job, as well as the Sessions Court, UPA. They have rightly observed that these cases were tied to a rally that stemmed out of a local panchayat issue. So there was no pressure from outside, whether whatsoever. Well, likewise, the GMFC of the Capital Complex, as well as the Honorable Judge of the Session Court UPA, had granted bail since the 8th of April. Now I want to say, in fact, the first 9 persons were given bail on the December itself, 2020, and another 18 persons were bailed out in the January of this year, and the remaining 4 of the remaining 5 persons were bailed out last month. But unfortunately, of course, this release were appreciated by the public, and public is viewing them as like a good gesture from the government. Of course, yes, and because of the release of this many people, well, there has never been any turmoil, any apprehension, no fresh cases, no agitation. So there's absolutely calm. There's no danger by releasing this many people. And now, of course, only one person is remaining behind the bar, and he is Mr. Ngwazusa Yubin, the president of All Yubin Student Union. And we are very sad about this. Like,
he alone of all people are now still kept under the behind the bar. Appeal to the government as well as all the civil society also that please do whatever process is required to release him as early as possible, because the Honorable Session Court, UPI, as well as the GMFC Itanagar had granted Ngwazusa bail since 8 April of this year. So he is not scot-free. He is bound with a lot of surety, bound with terms and conditions of the bail. So there is no danger whatsoever in releasing him. Well, he is a very nice guy. There's no record of past record of any wrongdoings against him. Even this point was voiced by the judge of the session court. What happened now was because of zeal overstepped the law, which is regretted, and the sessions court is dealing with this. In fact, his production was on the 20th of April, last April. So even after getting the bail from the UPI court, the local administration just wanted to sure of double binding, so they have taken him to Changlang sub jail. So we want to appeal to one and all that let him also get the benefit of Constitution 20 of Indian Constitution, where a person is not punished twice for the same crime. So because session court is dealing with this, we are very confident with the sessions court, the UPI. So please release him. We want to appeal, and this will be the right gesture from our people-friendly government, and also a small tribe in the international border area like Vijayanagar. Please comfort the tribe by releasing our student leaders from the detention. We very much appreciate like so many people are released, so please release the president of our student also. Thank you very much for taking into consideration of our appeal. This is our sincere appeal, and we hope government will definitely act upon this and release him very soon. Thank you. मेरा नाम है लिया हेंगवाजा. I'm the brother of Ngwazusa Yubin, the president of all Yubin Students Union. Ngwazusa तो मेरा सबसे यंगेस्ट ब्रदर है, और मेरा साथ ही मियाँ में भी जब पढ़ते समय मेरा घर में था, और ईटानगर में जब बीए और पोस्ट ग्रेजुएशन वो किया था, वो भी सब में भी हम इन टच था. मेरा भाई है, अपना सपोर्ट किया है. और मेरा भाई, उसका यूनिक क्वालिटी एक चीज़ है, वो है सोशल इश्यूज़ को बहुत कंसर्न होते हैं. वो स्टूडेंट यूनियन लीडर होने से आगे और सोशल सर्विस सेक्रेटरी भी किया था जब मियाँ में था, वो जहाँ वो सेमेट्री वो उस पर भी साफ़ किया. और उसका बाद में जब लीडरशिप टेकअप होने का बाद में बहुत फेमस इशू तो जो पंचायत इशू था, लेकिन और भी बहुत चीज़ किया है, क्योंकि उसका दिल में बहुत ये इश्यूज़ के लिए बहुत कंसर्न होता है, अरुणाचल राइट्स के लिए. एक समय में जो फॉल्स एफिडेविट जो एडीसी ऑफिस में हुआ था, उसको भी वो टेकअप किया है. और रिलीज़ तो पीआरसी का बारे में भी इतना फेमस नहीं हुआ, लेकिन रिलीज़ अरुणाचल राइट्स के लिए मियाँ में रिलीज़ 4 बार किया था. जब मियाँ में था, मेरे घर में आना जाना होता है, मेरा भाई घर में रहते हैं. और एक समय में 2019 को विजयनगर का स्कूल थोड़ा सा क्लोज नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ. उस समय भी वो स्टूडेंट लीडरशिप से टेकअप किया था. और अभी ये सीबीएस से एफिलिएशन से भी वो अभी तो रेस्टोर हो गया है, ठीक हो गया, नहीं तो बंद होने वाला था. और बहुत चीज़ ऐसे किया है. और विजयनगर रोड के लिए भी सीएम से भी रिप्रेजेंटेशन किया, एमपी से भी रिप्रेजेंटेशन किया है. और सब फ़ोटोज़ है, उसका एविडेंस सब कुछ है. और जब जेल में था, चांगलांग जेल में, कल परसों पता चला कि जब वो लोग अंदर में था, पानी का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था. उसके लिए भी वो लोग ने डीसी से लिखा है, और इलेक्ट्रिसिटी तो मदद करो, ये वाटर सप्लाई दो अच्छा से. और डीसी रेस्पॉन्ड किया है, तो वहाँ भी सोशल सर्विस उसका वो लोग कंटिन्यू किया है. उसने एक बार लिस्ट किया था उसके कितना कंट्रीब्यूशन किया है, पूरा लिस्ट है, 2 पेजेस का कंट्रीब्यूशन.
और स्टेट और सोसाइटी के लिए भी, और बहुत चीज़ है यहाँ में लिखा है, लेकिन हम सिंपल ही बताया है। लेकिन जो ये जेल में जाना पड़ा वो इशू है वायलेंस, वो तो बहुत तो आगे यो जीएस सेक्रेटरी से बताया था कि वो तो इससे बताया था कि वो तो बहुत प्रेशर्स, बहुत डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने के बाद में ही वो ओवर जेलस, माने तो फ्रस्ट्रेशन ओवर हो गया, और जहाँ सिक्योरिटी भी नहीं था और अरेंजमेंट पुलिस भी कम थी था, वो उसमें बहुत ये गंदरगोल हुआ है, वो सब हम लोग रिग्रेट है। लेकिन वो आइसोलेटेड इंसिडेंट उसको देख के जब इतना ज़्यादा एक्शन लेने की तो ज़रूरत नहीं है मेरे तरफ से सोचता है, तो उसका कंसिडर कीजिए, वो कॉन्टेक्स्ट को देखिए, क्योंकि सिर्फ एक इंसिडेंट को इतना बड़ा इशू कर देगा तो आवाज़ कौन उठाएगा स्टेट में। तो हम सोचता है कि ये भाई तो एक्टिविस्ट है, उसका वॉइस को भी भविष्य में वो डिस्करेज होगा तो हमारे स्टेट के लिए नुकसान है, इसलिए जल्द उसको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये भाई तो कभी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये कोर्ट सेशन कोर्ट से भी ऑब्जर्व किया है, जब यहाँ भी था अच्छा काम किया, घर में भी सोसाइटी में भी, अगर आप लोग वेरिफिकेशन करें से भी ख़राब रिकॉर्ड उसका हिसाब में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, हम तो इतना अमीर आदमी भी नहीं है, बहुत तकलीफ़ हुआ है, ये पिछला ऑलमोस्ट 1 ईयर हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो रहा है, इसलिए हम सोचता है कि जल्द वो बाइक को रिलीज़ कीजिए। सिर्फ मेरा परिवार नहीं, जितना भी हमारा ये यूबिन सोसाइटी है, हम सब के लिए बहुत प्रेशर तकलीफ़ हो रहा है, इसलिए जल्द रिलीज़ कर दीजिए, ताकि वो भाई भी ये कोर्ट में उसका ट्रायल के लिए भी डिफेंस करने के लिए फेयर ट्रायल होने के लिए मौका देना चाहिए, ताकि वो चांस मिलने, लोग बेनिफिट होने के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है। थैंक यू। हमारा नाम है लुचेसो यूबिन, प्रेसिडेंट ऑफ यूबिन वेलफेयर सोसाइटी ऑफ विजयनगर सर्कल। आज इधर में हम लोग बैठा है, बहुत सा है, हम लोग का ये स्टूडेंट भी है, कोई हमारा लेडीज़ भी है और सीनियर सिटीजन्स भी है, और हम लोग का लीडर्स, पब्लिक लीडर्स भी जितना हो सके मेवा में आके आप लोग का सामने हम लोग खड़ा हुआ है। हम लोग आज आने का जो मुद्दा जो है पहले से हमारा सेक्रेटरी ने बताया है, और सबसे आने का मोटो तो ये था, इधर में जो लिखा वाला भी बहुत है, reverse from jail to bail, respect the bail order, session court, JMFC, UPA, Ngwajusa fight is for the indigenous right is for Arunachal Pradesh, release president of all Yabin student union from detention। तो यही कारण से हम लोग इधर में आप लोग के मीडियम के द्वारा से सच्चाई को, या हम लोग का जो दिल में जो है सबको बताने के लिए आया है। तो उसमें 2 बात तो सच तो है कि आज हम लोग इधर में खड़ा है, अपील कर रहा है, कोई तो दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि अभी तक का जो है डिटेंशन से इंसिडेंट जो हो गया, उधर से लास्ट में तो 5 आदमी हम लोग का लीडर्स चालना NSA एक्ट में डाल के उसमें बैठा हुआ था, फिर उधर से 4 आदमी निकल दिए, अभी सिर्फ 1 आदमी है बोल के ना, 1 आदमी को सिर्फ बैठने दिया बोल के हम लोग भी बहुत दुख हो के गवर्नमेंट आप लोग का सामने या पब्लिक के सामने या वीडियो मीडियम के सब के सामने या इंडिजिनस ट्राइब फोरम्स या जो भी अरुणाचल बचाने के लिए जो इंटरेस्ट लेता है, सब ग्रुप्स के सामने ऐसे खड़ा होके हम लोग का जो अपील जो है वो बताने के लिए वो हम लोग बैठा हुआ है। तो अभी हम लोग जो मैंने जो बोल दिया है कि दुख इसलिए कि हम लोग का अभी स्टूडेंट यूनियन जो
यूबिन प्रेसिडेंट ngwajusa जो है अभी जेल में है अभी तक भी, तो उसको जल्दी से जल्दी रिहा कर दीजिए बोल के अभी जो अपील करने वाले ने बहुत किया हुआ है। इसीलिए हमारा तरफ से भी ऐसे एपेक्स बॉडी ऑफ यूबिन ट्राइब्स की तरफ से भी हम लोग इधर में एडीसी है, ईएसी है विजयनगर सर्कल की, या एडीसी है या डीसी है, उधर से हाई लेवल का जो होम मिनिस्टर है, या हम लोग का कंसर्न जो मिनिस्टर कामलू है, और हम लोग का स्टेट लेवल का ओवरऑल का इंचार्ज हम लोग का पेमा खंडू जी है। उस सब को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जो भाई एक तो अभी जेल में है उसकी जल्दी रिहा कर दीजिए बोल के। तो कुछ भी गवर्नमेंट को भी हम लोग धन्यवाद भी जो देता है, जो ये वो था कि हम लोग 4 आदमी को निकाल दिया बोल के महापिता जी भी बहुत धन्यवाद देते हैं गवर्नमेंट को भी, और एक आदमी को भी उसको जल्दी रिहा कर दीजिए बोल के। और हम लोग इज़ा में स्टैंड इन होके ये बता रहा हूँ। इसीलिए सबको हम अपील करता है कि जो हम लोग का अपील एक ने एक कोशिश करके अभी उसको जल्दी कोर्ट में भी हम लोग कोर्ट में भी डाल के रखा हुआ है। जो कोर्ट में डालने से भी डायरेक्शन हम लोग का गवर्नमेंट को ही आ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट को भी ही हम लोग को देख के, हम लोग तो बहुत माइनर ट्राइब्स है, पॉपुलेशन ओनली 5000 सिर्फ है। अरुणाचल में सबसे एकदम कंप्लीट ट्राइब वाला हम लोग है। इसीलिए हम लोग को ट्राइब को बचा दीजिए बोल के गवर्नमेंट को अपील करता हूँ। तो गवर्नमेंट हम लोग का पिताजी का जैसा है, इसीलिए पिताजी को नहीं बोलेगा तो हम लोग किसको बोलेगा। इसीलिए हम ऐसे पिताजी को हम लोग मांगते रहता हूँ, इसीलिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर देगा बोल के बहुत आशा करके इधर में समाप्त करता है।